ओके, सो एंजाइम्स इज डन। अब नया पार्ट शुरू करते हैं, वेक्टर्स। नाउ जैसे मान लो आपको कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो यू वुड यूज एनी काइंड ऑफ अ कैरियर। ठीक, से आपको अगर खुद भी जाना है तो देयर ऑल्सो यू विल यूज अ कैरियर, से एनी व्हीकल। यस, मान लो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, वट एवर, या नो कुछ भी। सेम वे में अगर एक चीज आपको कहीं पहुंचानी हो तो यू विल यूज से द कोरियर सर्विसेज। यस, तो यहां पे भी इमेजिन दैट कि whenever we are trying to pass any alien DNA from one particular organism to another organism, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, सो द वेक्टर्स क्या है देखो, व्हाट आर द वेक्टर्स? अरे वेक्टर्स कौन आ रहे हैं? यस, it is a DNA molecule that can carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cells. तो ये बेसिकली है क्या, प्लाज्मिड जैसे ना, अभी अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो एक प्रकार का वेक्टर है। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ डीएनए मॉलिक्यूल that can transfer the desired gene of interest or alien DNA from one organism to our host। ठीक है, and it must be also capable of replication inside the host cells। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है देखो, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस एक्सेट्रा। these are, remember, natural vectors। नेचुरल वेक्टर्स क्यों, लिविंग एंटिटीज में है ना, से प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन केस ऑफ बैक्टीरियल फॉर्म्स। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस तो वायरसेस है दैट ईट द बैक्टीरियल फॉर्म्स। फाइन, सो दे आर नेचुरली ऑकरिंग। फाइन, आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी हैं, बाद में देखेंगे उसे। ठीक है, विल सी दैट। अब देखो बच्चा, क्लोनिंग वेक्टर्स, द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या है, प्लाज्मिड्स फॉर इंस्टेंस। नाउ plasmids are autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। आउतरे देखो, plasmids are autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। मतलब ये आपके बैक्टीरिया का ओरिजिनल डीएनए नहीं है, इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब एडिशनल। So therefore, plasmids are not something that contain the inheritable material। Plasmids are not containing the inheritable material। वो उसका inheritable part नहीं है। मतलब one bacteria does not transfer the plasmid from itself to its progeny। समझ में आया? एंड प्लाज्मिड्स क्या कंट्रोल करते हैं? ओनली बेसिक कैरेक्टर्स को ही इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक रेजिस्टेंस हो गया, विरुलेंस हो गया, ठीक है, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एडिशनल फंक्शंस हो गया, लाइक फर्टिलिटी वगैरह। ठीक है, ओनली दोस काइंड ऑफ फंक्शंस, एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शंस can be influenced or controlled by the plasmids, but they are not considered its genetic material। Remember this, that's the reason why it is it is mentioned as extra chromosomal। क्यों? ये additional है, डीएनए तो है ही, डीएनए के अलावा डीएनए से अलग होके
some extra amount of DNA is there, ठीक है, that does not participate in the inheritance mechanism. So that is what you call a plasmid. So plasmid है क्या? Autonomously replicating single circular extra chromosomal DNA. ठीक है. Some plasmids have only 1 to 2 copies per cell. तो एक पर्टिकुलर सेल में ओनली 1 to 2 कॉपीज ही मिलेंगी आपको, किसी में आपको 8 से 10 भी मिलेंगी. ठीक है. It depends upon the type of the cell. So its number varies. ठीक है. Now you can see here, किसी में आपको 15 से 100 के अंदर भी मिलेगा. So that depends upon the size of the cell, the host, bacterial form, या फिर requirement of it. बहुत सारी चीजें फैक्टर्स में आती हैं. But its minimum number has to be 1 or 2. At least एक होना चाहिए. ठीक है. Then comes bacteriophages. Bacteriophages are those those viruses that consume bacteria or destroy bacteria. ठीक है. Fine. High number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cell. Now यहाँ पे ये term use किया हमने copy number. What exactly is copy number? Copy number का अर्थ है number of copies that can be formed. ठीक है. The number of copies that can be formed per unit time. ठीक है. मतलब within a given span of time ये कितनी बार replicate कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं, producing more number of copies. That is what you call copy number. तो ये जैसे multiply करेंगे, इनके अंदर का DNA भी multiply करेगा. Simple concept. Now when I am doubling myself, my all internal contents also are doubling themselves. ठीक है ना. तो ये जो double हो रहा है, this is what you are talking about as a copy. तो copy number क्या है? सपोज मान लो 1 मिनट में या 20 मिनट में ये आपके कितने नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं. दैट इज व्हाट यू कॉल कॉपी नंबर. ठीक है. तो इट टेल्स अबाउट कि मान लीजिए जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल देमसेल्व्स इन 20 मिनट्स. तो 20 मिनट में जितनी पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी. ठीक है. Similarly, yeast cells, they multiply or they double themselves in 90 minutes. तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आपकी बैक्टीरिया का कॉपी नंबर ज्यादा है. Similarly, बैक्टीरियोफेजेस देखेंगे तो every minute they can double their population. तो मान लो अगर डबल कर रहे हैं अपना पॉपुलेशन every 1 minute, तो 20 मिनट में 20 बार हो जाएंगे. तो एनी वैल्यू से मान लो 2 से लिया हमने, 2 to the power n हो गया, तो 2 raised to the power 20 हो गया. Getting the point. So they would have a greater copy number. Fine. तो कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा कॉपीज बना पाते हैं उस पर्टिकुलर डीएनए की, दैट इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू एज कॉपी नंबर. कोई भी प्लाज्मिड ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, जिसका कॉपी नंबर ज्यादा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है. ठीक है. बिकॉज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस एज मेनी कॉपीज पॉसिबल. ठीक है. फिर देखिए, when the cloning vectors are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied. वही बोला आपको मैंने, जब मेरी मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मेरे अंदर जितनी भी कंटेंट है वो भी डबल हो जाएंगी ना सब. फाइन. सो दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट सेज. सो is also multiplied to the numbers equal to the copy number of the vectors. Once more, when the cloning vectors are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied to the numbers equal to the copy number of the vectors. मान लो ये बैक्टीरिया है, इसे किसने इन्फेक्ट किया ना, बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया. ठीक है. अब बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, प्लस ये जो आपकी बैक्टीरिया है
ये भी मल्टीप्लाई करेगी। तो जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगी तो उसके अंदर जो भी आपके प्लाज्मिड्स हो या फिर वेक्टर्स हो लाइक बैक्टीरियोफेजेस, दे विल आल्सो बिकम डबल ना। क्यों, पहले एक ऑर्गेनिज्म था, अब दो हो गए, तो दो में हाफ हाफ नहीं होगा, दो में डबल हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो द कॉपी नंबर भी इंक्रीज हो गया। So that many number of organisms will be producing that many number of copies. ठीक है। हो, इस क्लोनिंग वेक्टर में हमने जो देखा था, दिस इज द सैंपल ऑफ अ प्लाज्मिड। ये एक प्रकार का प्लाज्मिड है। ठीक है। तो what you observe in this particular plasmid as a cloning vector, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हर प्लाज्मिड में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहता है। यस, इट हैज एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? ओके। देन इट हैज सेवरल सिलेक्टेबल मार्कर्स इन इट। क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर्स इन इट। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, देखो। इफ यू लुक एट इट, ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, टीईटी, दिस स्टैंड्स फॉर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। ये क्या है? एम्पिसिलिन। फाइन। ये दोनों आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। क्यों? बिकॉज सिलेक्टेबल मार्कर्स उनको कहते हैं जो आपको चेंजेस कुछ भी अगर हो, they can tell you about those changes occurring within the plasmid. तो इसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, that is informed to you by the selectable markers. Is that clear? Fine. Okay. तो यहाँ पे आपको दो मिल रहे हैं, क्या? Selectable markers. One is ampicillin, the other is tetracycline. Now both are antibiotics. क्यों? ये जो आपकी वेक्टर है, प्लाज्मिड है, ये कौन सी प्लाज्मिड है बाबू? आर प्लाज्मिड है। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंट। कौन सी एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंट है? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। दैट मीन्स अगर इस बैक्टीरिया में जहां पे ये वेक्टर है, उसमें अगर आपने एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों डाल दिया, then nothing will happen to the bacteria. Why? Because it will be resistant to these two. ठीक है। पेनिसिलिन डालो तो मर जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन डालो तो मर जाएगा। ठीक है। अंडरस्टूड? सो why is this resistance there? ये रेजिस्टेंस है because of the presence of these selectable markers representing ampicillin and tetracycline. समझ में आई बात? ओके। इनको आप सिलेक्टेबल मार्कर्स और मार्कर जीन्स भी बोलते हैं। फिर आया बच्चा क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या है? ये जो आप देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है यहाँ पे। ठीक है ना? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दी साइट्स जहां पे आप इन एंजाइम्स को यूज करके काट सकते हो। यू कैन कट दोस प्लेसेस एंड उस जगह पे आप और कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ऐड कर सकते हो। समझ में आया? You can cut that particular sequence from there and add another sequence from any other source into it. तो वो हो गए आपके बेसिकली क्लोनिंग साइट्स। ठीक है। ओके। रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोल सकते हो, क्लोनिंग साइट्स बोल सकते हो। फिर आया वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। फाइन। नाउ लुक इनटू दिस स्टडिंग ऑफ द एंटायर थिंग। ये एंटायर थिंग को पहले देखो। यहाँ पे आप पाओगे बहुत सारे नाम मेंशन्ड है। यस, नाउ लुक एट दीज नेम्स, यू विल अंडरस्टैंड। एक मिनट देखो, एक एक करके देखते हैं। हाइंड 3 फॉर इंस्टेंस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। दिस हाइंड 3 साइट मतलब
यहाँ पे हाइंड 3 काटता है, ठीक है, हाइंड 3 इसे यहाँ पे काटता है। तो हाइंड 3 कहां से ऑब्टेन हुआ है? फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैसिलस अमाइलो लिक्विफैशियंस, ठीक है। सेल स्ट्रेप्टोकोकस albus, PVU Proteus vulgaris, PST Providentia stuarti, ठीक है। इको R1 एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। अरे बुझी तो रे, यस यस, यू कैन इजीली गैस कि यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं। Since there are different enzymes here, different enzymes here, ठीक है, तो ये डिफरेंट एंजाइम्स आपकी डिफरेंट सोर्स से आई हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्स से आई हैं। सिंस दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, तो ये आपकी डिफरेंट बैक्टीरिया से ऑब्टेन होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। दे वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरियल फॉर्म्स, ठीक है, क्लियर, फाइन, ओके। नाउ लुक इनटू दिस, रेस्ट्रिक्शन साइंस आपके देख लो, हाइंड 3, इको R1, बैम H1, SAL1, PVU, PST, CLA, ये सब आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है, फाइन। उसके बाद देखो ORI, ये स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, फाइन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन हो गए? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एंटीडाइविन रेजिस्टेंट, यस। आरओपी क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? इससे पहले जो आपने कॉपी नंबर पढ़ा था, दिस आरओपी इज नो द कॉज ऑफ दैट कॉपी नंबर, इसके हिसाब से ही आपकी कॉपी नंबर वैरी करती है। क्या है देखो, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है। आरओपी इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोटीन्स और replication of proteins, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है? इट कोड्स फॉर द प्रोटीन्स दैट विल हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये जितना बनाएगा उतनी ज्यादा बार ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगी, and therefore it will decide the copy number, ठीक है। How? Look into this. Each and every part जो इसके हैं उसको हम लोग देखेंगे। So its original replication क्या है? It is the sequence where replication will start. It is that sequence where replication will start. Piece of DNA that is linked to the ORI, piece of DNA that is linked to the ORI can replicate within the host cells, ठीक है। Piece of DNA linked to the ORI can replicate within the host cells, ठीक है। It also controls the copy number of linked DNA. It also controls the copy number of linked DNA.
So for getting many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports a high copy number. मतलब जिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को आपने चूज किया उसका पहले से हाई कॉपी नंबर होना चाहिए. बट ये हाई कॉपी नंबर कैसे होगा? When the origin of replication और ORI, origin of replication और ORI को आप कंट्रोल करें. ठीक है. सो इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ ORIs प्रेजेंट, उसका क्लोन बना लिया आपने, तो उतनी बार वो रेप्लिकेट करेगा. सिंपल. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए. ठीक है. फॉर गेटिंग मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर. ठीक है. अगर मान लो उस वेक्टर में वो नहीं है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के उस वेक्टर में डाल सकते हो. ठीक है. ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर. ठीक है. तो जब आप मल्टीपल कॉपीज लगा लोगे ORI के, तो इट विल प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस. हेंस आपको ज्यादा कॉपी नंबर मिलेगा. ठीक है. देन सिलेक्टेबल मार्कर्स और मार्कर जीन्स. ये बेसिकली क्या है? व्हाट आर दीज? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये बेसिकली है आपके यहाँ पे इन दिस प्लाज्मिड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. ये क्यों चाहिए? इट विल टेल यू अबाउट वेदर द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज डन और नॉट. ठीक है. So it's a gene that helps to select transformants and eliminate the non-transformants. मतलब as I have just said, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहां से from here I have removed say this particular tetracycline resistant, ये काट दिया, इसे हमने काट दिया. ठीक है. एंड इस जगह पे हमने एक और पर्टिकुलर सीक्वेंस डाल दिया. ठीक है. से क्लोरामफेनिकॉल. ये भी एक एंटीबायोटिक. हमने ये वाली एंटीबायोटिक की सीक्वेंस को यहां डाल दिया सिलेक्टेबल मार्कर के हिसाब से. ठीक है. नाउ व्हेन आई टेक दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया कंटेनिंग दिस प्लाज्मिड, एंड उसमें जब मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला, then this bacteria will die. Why? Because इसमें अब वो tetracycline resistant जीन नहीं है. ठीक है. So that proves कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें tetracycline resistance removed हो गया. ठीक है. लेकिन when I add either ampicillin or क्लोरामफेनिकॉल, नाउ क्लोरामफेनिकॉल जब डाला इसमें, तो बैक्टीरिया जिंदा है. नो चेंज. बैक्टीरिया इज अलाइव. दैट शोज कि हमने यहाँ पे कोई चेंज, बदलाव किया है. क्या बदलाव है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म, क्लोरामफेनिकॉल रेजिस्टेंस आ गया. एम्पेसिलिन तो था ही पहले से, सो नॉट अ प्रॉब्लम. But chloramphenicol is the new one added, because of which आपके यहाँ पे tetracycline resistance बंद. ठीक है. Okay. Then it is a gene that helps to select transformants and eliminate the non-transformants. ठीक है. तो जिसमें आपका ये चेंज हुआ है वो ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसमें नहीं हुआ है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. ठीक है. If a piece of DNA is introduced in a host bacterium, it is called transformation. Such bacterium is termed transformant. ठीक है. If transformation does not take place, it is non-transformant. ठीक है. अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. ठीक है. ओके.
So selected markers of E. coli include genes encoding resistance to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, etc. समझ में आया? वही chloramphenicol आपको दिखा दो उस समय. Ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, these are antibiotics. तो जो genes इनमें है, they may provide resistance against these particular antibiotics. ठीक है? Normal E. coli cells have no resistance against the antibiotics. इसलिए बहुत बार देखा होगा आपने कि हम लोग जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं, सपोज मान लो कोई बीमारी है तो एंटीबायोटिक खाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपको ना उल्टी होती है या लूज मोशन हो जाता है या मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, ठीक है, घाव या पट रहे, ये सब चीजें इसलिए हुई है because those antibiotics which you have consumed, ठीक है, वो they have actually harmed the E. coli population in your gut by alimentary canal. Because of that उनकी संख्या कम हो गई. Since their quantity is less, so वो जो अच्छे काम करते थे, like maintaining the pH, ठीक है, proper digestion, ठीक है, प्लस विटामिन B12, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो चीजें अब नहीं हो पा रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ इस तरह रिएक्शंस गुडी को दिसूची. ठीक है, उस वजह से जब ऐसा सीन होता है तो व्हाट वी डू, हम लोग नॉर्मली मार्केट से जो प्रोबायोटिक मिलती है उसको लाकर यूज करते हैं. ठीक है जी, ओके, वो हो गया आपका सिलेक्टेबल मार्कर. डन. नेक्स्ट इज क्लोनिंग साइट्स. क्लोनिंग साइट्स क्या है? These are basically recognition sites. Already I have told you about that. ये recognition sites हैं. They are used to recognize that particular plasmid. ठीक है? To link the alien DNA, the vector needs a single or very few recognition sites for restriction enzymes. Normally 1 to 2. ठीक है? क्यों? जितनी ज्यादा आप यूज करेंगे, ठीक है, व्हाट यू कैन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो यहाँ पे ज्यादा सीक्वेंसेस अगर आपने चेंज किया तो दिस प्लाज्मिड में बिकम अनस्टेबल. एंड मोर ओवर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे BAM H1 भी है, यहाँ पे SAL1 भी है. सो दैट मीन्स देयर इज सम पार्ट विच इज कॉमन टू बोथ. तो मान लो आपने BAM H1 यूज किया, so it may interfere or cut the site of SAL1 also, some part if not all. If that happens, तो आप जब वहां पे कोई दूसरा सीक्वेंस ऐड करेंगे तो it will not be able to join properly, ligation नहीं होगी. If that happens, then आपका जो ये ट्रांसफर करने वाला कॉन्सेप्ट है, the method is there, वो नहीं हो पाएगा. Understood? That's why minimum 1, maximum 2 to 3 can be there cloning sites. ठीक है? More than one recognition site generates several fragments. It complicates the gene cloning. समझ में आ रही बात? वही बोला आपने, अनस्टेबल कर देगा उसे, फ्रैगमेंट है ना, मल्टीपल फ्रैगमेंट बन जाएंगे. अगर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन गए then it will be a problem. ठीक है ना? अंडरस्टूड? बोलने का अर्थ ये है, मान लो ये BAM H1 है, इसका बस यहीं पे ही साइट होगा. Nowhere else in the entire vector you'll find another BAM H1. Similarly PVU1 जो है, ये भी बस यहीं मिलेगा, nowhere else. ठीक है? EcoR1 बस यहीं मिलेगा, nowhere else. So therefore remember this thing कि wherever recognition sites or cloning sites are present, they are specific to that site only. ठीक है? ओके, उसके बाद ligation of alien DNA is carried out at a restriction site. ठीक है? Present in one of the 2 antibiotic resistant genes. ठीक?
तो यहाँ पे हमको जो काटाकुटी करना था, वी हैव डन द कटिंग हियर, ठीक है, डन द कटिंग हियर, एंड काटने के बाद वंस यू हैव कट इट, आपने वहां पे लाकर एक न्यू सीक्वेंस ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, फाइन। देन ligation of the foreign DNA at BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in vector PBR322। जो यहाँ पे देखो BAM-H1 दिया हुआ है, यस, BAM-H1 की उस साइट पर हमने क्या किया, एक और पर्टिकुलर जीन को लाकर ऐड कर दिया, ठीक है। Then as a result recombinant plasmid is formed, बिकॉज वहां पे क्या था, एम्पिसिलिन सॉरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को बाहर कर देली, ता जगह आउ की छूटे लगे देली। तो नाउ दैट पर्टिकुलर नो बैक्टीरियल फॉर्म is no longer immune or resistant to टेट्रासाइक्लिन। समझ में आया, वो टेट्रासाइक्लिन को और रेजिस्टेंट नहीं है। इफ इट इज नॉट रेजिस्टेंट तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ठीक है, समझ में आया। इफ लाइगेशन डज नॉट ऑकर इट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। मतलब क्या है बाबू, जब आपने काटा, ठीक है, और काट के एक नया सीक्वेंस जोड़ा, अगर ये ठीक ठाक जुड़ जाता है तो ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, अगर नहीं जुड़ता तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट अभी सुना, डिफरेंस क्या है दोनों में। सी, रिकॉम्बिनेंट इज सिंपली अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। आप अगर कोई भी पुरानी चीज को वहां से निकाल देते हो एंड उसकी जगह पे आप एक नई चीज को वहां ऐड कर देते हो, देन यू कॉल इट टू बी रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना। बट सपोज वो प्रॉपरली काम करता है, फंक्शंस द सेम वे एज यू इंटेंड इट टू, तब उसे आप ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। मतलब बोलने का अर्थ यह है कि रिकॉम्बिनेंट इज अ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, रिकॉम्बिनेंट इज अ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, whereas the transformant is a functional aspect। समझ में आया, recombinant is a structural aspect whereas transformant is a functional aspect। आप रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे जो भी कटिंग करते हो वहां पे लेकर कुछ एक जोड़ते हो, अगर वो जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेंट है बस। लेकिन अगर वो उस काम को कर सकता है जिसके लिए वहां पे उसको डाला गया, देन ओनली यू विल कॉल इट ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आया, तो ट्रांसफॉर्मेंट इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट whereas recombinant is a simply structural aspect, ठीक है, फाइन। फाइन ना, इन क्लोनिंग साइट्स पे जहां पे आप क्लोन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं, वी कॉल इट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, जब आपने टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया बाय रिमूविंग दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो अब क्या हुआ, यस, द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एम्पिसिलिन और tetracycline is no longer existing, either or even both। तो ये जो आपकी वजह से आपने रिमूव किया, कोई नया सीक्वेंस ऐड किया, रिकॉम्बिनेंट बनाया, because of the insertion of a new thing, the original genetic sequence which was there is now removed or inactive। इस चीज को हमने क्या नाम दिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो जरा समझ में आएगा,
When a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactivated. ठीक है, तो फॉरेन जीन जब घुसा इनटू दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल प्लाज्मिड, तो ओरिजिनल वाला जीन जो था वो क्या हो गया, इनएक्टिवेटेड. दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. हियर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. क्यों? बिकॉज आपने उसे रिमूव कर दिया है, तो वो इनएक्टिवेटेड हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए. नाउ लुक एट दिस, यू विल अंडरस्टैंड. फिगर देखिए, ये बेसिकली आपकी ट्रांसफॉर्म सेल है. क्यों? बिकॉज इसमें हमने प्लाज्मिड डाला हुआ है. दिस प्लाज्मिड कंटेन्स द एलियन डीएनए बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब इस पर्टिकुलर मीडियम में, ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट भी डाला हुआ है, प्लस हमने एम्पिसिलिन वाला एंटीबायोटिक भी डाला. बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ? यस, ओवरनाइट कल्चर करने के बाद, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज बन गई बैक्टीरिया की. सो दिस बैक्टीरिया हैज बिकम रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन. ठीक है, फाइन. तो बिकॉज हमने ये जो ट्रांसफॉर्म वाली सेल को डाला along with the non-transformed cell, so because of the transformed, certain things was passed upon from the transformed to the non-transformed, as a result of which यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो colonies बन गई किसकी? the transformed. Look into it. When the plasmids are introduced into E. coli cells, 3 types of cells are obtained. Very important, ध्यान दीजिए इस पे. 3 types of cells are obtained. ठीक है, हमने प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया इनटू ई कोलाई, तो उसमें 3 तरह की चीजें दिखी. क्या क्या दिखी देखो. पहला है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. ठीक है, इनमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं होता, so they are not resistant to either tetracycline or ampicillin, hence non-transformants. Then transformants with non-recombinant plasmid, they are resistant to both tetracycline and ampicillin. Transformants with non-recombinant plasmid मतलब ओरिजिनल जहाथिला प्लाज्मिड से है अच्छी, ठीक है, but no, even if we have inserted a particular gene, that outcome is still the same. Therefore, they are resistant to both tetra and ampicillin. फिर आ गया ट्रांसफॉर्मेंट्स. ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हो गया? दे आर रेजिस्टेंट टू ओनली एम्पिसिलिन. क्यों? मैंने एम्पिसिलिन रिमूव कर दिया था, सॉरी मैंने टेट्रासाइक्लिन रिमूव कर दिया था. सिंस टेट्रासाइक्लिन रिमूव हो गया, so now they are no longer resistant to tetracycline, but they are resistant to one which is present, that is ampicillin. बुझ पाला पॉइंटर है. तो यहाँ पे अगर आप देखें कलर वेरिएशंस, these are non transformed, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं आए. ठीक है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म तो हुए हैं लेकिन they do not contain the recombinant. ठीक. Then finally transformed with recombinant vector. तो इसमें transformation has been done because of the recombinant vector, in which the tetracycline resistance was removed. So now the transformed will have only resistance to ampicillin. ठीक है. So recombinant plasmids can be selected out from the non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin medium. याद रखो, समझ में आएगा. इस मीडियम में हमने बस एम्पिसिलिन डाला. ठीक है, टू चेक वेदर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सही है कि गलत है. तो उसमें क्या किया गया, since the tetracycline gene is now removed, ठीक है,
अब टेट्रासाइक्लिन जीन, ठीक है, एक्टिव तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम इज प्रेजेंट, ठीक है, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप हो रही। व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, द रेप्लिका प्लेटिंग जिसको आप बोलते हो, यहां पे यू कैन सी, इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम डाल दिया, as a result of which, since tetracycline resistance no longer exists, वहां पे आपको रेजिस्टेंस क्या मिल गया, एम्पिसिलिन का, ठीक है। देन ये चीजें वाइस वर्सा है, why, because next when you transfer it into the tetracycline medium, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरियल फॉर्म जो है, it will not be able to survive the tetracycline antibiotic and will, ठीक है। The recombinants grow in ampicillin medium. Why? Because वहां पे आपकी antibiotic resistance है. The recombinants grow in ampicillin medium but not on tetracycline medium. Why? Because tetracycline resistance is gone. So if you add tetracycline to that particular medium, then what will happen? That basically would kill the bacterial forms because antibiotic resistance out nahi, ठीक है। This is a very nice thing. इसमें क्रोमोजेनिक इफेक्ट हम लोग डालते हैं। Thus, one antibiotic resistant gene helps to select the transformants. The inactivated antibiotic resistant gene helps to select the recombinants. यहाँ पे ध्यान दो, एक बहुत अच्छी पॉइंट है। This question is also asked as difference between recombinants and transformants. One antibiotic resistance gene helps to select the transformants, ठीक है। The inactivated antibiotic resistance gene helps to select the recombinants, ठीक। अगर एक्टिव है तो ट्रांसफॉर्मेंट्स है, इनएक्टिव है तो रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। फाइन। But this type of selection of recombinants is a difficult procedure. क्यों? हर वक्त, every time, you will not be able to identify the recombinants and transformants. आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो in order to identify them better, properly, in a better way, हम लोग एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं। That will tell us whether ये कॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली टेल। अब ये कैसे होता है ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। लुक एट इट। So an alternative selectable marker have developed based on their ability to produce color in presence of chromogenic substance. आओ तेरे कुछ मान लो ये नॉर्मल व्हाइटिश ग्रेइश आएगा तो आपको सब यूनिफॉर्म दिखेगा। Therefore, selectable alternative selectable markers are there, that have the ability to produce color in presence of a chromogenic substrate. ध्यान दो इधर, ये फॉरेन डीएनए था, ये प्लाज्मिड है, इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नाउ व्हेन वी हैव इंसर्टेड इट, किसके साथ, लैग जेड के साथ। एक में इंसर्शन किया, दूसरे में इंसर्शन नहीं किया, एंड देन इसमें हमने क्या किया, वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड कर डाला, ठीक है। This results in formation of white colonies.
वेयर एज यहाँ पे इन you'll have no insert, तो chromogenic substance जो होगा that will start turning bluish, ठीक है। सो अगर मान लो व्हाइट या कलरलेस हो गया, व्हाइट और कलरलेस हो गया, then basically it would be transformed. If it is not, then it is referred to as recombinant or non-transformant. ठीक है, फाइन। तो এই কোয়েশ্চেনটা মধ্যে আমি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখিব, যদি ব্লু কিবা কোনসি কলার্ড ফর্ম আসিলা वो आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। अगर कुछ नहीं आया, ट्रांसपेरेंट और व्हाइट आया, देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर। तो यही जगह रे यहाँ पे देखोगे आप, इट्स मेंशन अबाउट लैक जेड। लैक जेड इज लैक्टोज, ठीक है, लैक जेड इज लैक्टोज, ठीक है। तो उसमें क्या है, लैक जेड स्टैंड्स फॉर लैक्टो, ठीक है। लैक जेड जो है दैट इज लैक्टोज जेड, ठीक है। In this, a recombinant DNA is inserted into the coding sequences, ठीक है, of an enzyme. Now, ये चीज आप ना कहाँ फिर से देखेंगे, लैक ओपेरॉन में देखोगे। It will be seen later in लैक ओपेरॉन। कहाँ देखोगे रे बच्चा, लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में क्या है, एमिथी स्ट्रक्चरल जीन्स थी वो ZYA. Z stands for beta galactosidase, Y stands for permease and A stands for transacetylase, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, हमने लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के ध्यान में रख के another kind of chromogenic substrate to identify whether transformants है या recombinants है, वो जानने के लिए ये किया, ठीक है। देखो, in this a recombinant DNA is inserted into the coding sequence. Recombinant DNA is inserted into the coding sequence of an enzyme that is beta galactosidase. Beta galactosidase. So the gene is inactivated. This is known as insertional inactivation. जेतु हमें से जगह रे ईटा काढ़ी देले माने Z वो जो है ना वहां पे, ठीक है, लैक Z को हमने रिमूव कर दिया, ता जगह आओ किसी ऐड कर दीजिए, ठीक है। Such colonies do not produce color, वहां पे वो कलर प्रोड्यूस नहीं करते। Since they do not produce color, that means the lactose metabolism is not happening. क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज लैक जेड रिमूव कर दिया हुआ है। देयरफॉर ये हो गए आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट्स। दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया have an insert, if the plasmid in bacteria do not have an insert or have no insert, ठीक है, have no insert, then उसको क्या मिलेगा, हमको एक ब्लू कलरेशन मिलेगा, then they are non recombinants। काहेंगी, why, because वो अपना नॉर्मल लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करेंगे। when they will break down the lactose sugar, that will turn into a chromogenic substrate and react giving blue coloration। तो ब्लू होना अर्थात वो नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन ट्रांसपेरेंट रहना या फिर कलरलेस होना, दैट इज एन इंडिकेटर कि ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, ठीक है जी, फाइन। एज यू कैन सी, ये व्हाइट वाले आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स, ब्लू वाले जो है वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, क्लियर, ठीक है।
Now ये special vectors है कुछ that are useful in the cloning mechanism, जैसे Agrobacterium tumefaciens, ठीक है, ये बेसिकली एक प्लांट वेक्टर है. It is only useful for transfer of genes from one plant to the other and therefore referred to as a plant vector. ठीक है. Similarly, retroviruses. Retrovirus का अर्थ है RNA viruses. You can see यहाँ पे RNA दिख रहा है आपको. These are referred to as RNA viruses. क्यों? इनकी genetic material RNA होती है. They are also considered to be efficient vectors in plants as well as animals. ठीक है. Now ये Agrobacterium tumefaciens जो नाम है इसका, it contains the TI plasmid. TI plasmid. That is tumor inducing plasmid. ठीक. So because of this tumor inducing plasmid, ये Agrobacterium tumefaciens ये अपनी प्लाज्मिड दे देता है, सपोज मान लो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को, एंड देयर इट स्टार्ट्स टू डेवलप. क्या डेवलप करेगा रे बच्चा? ट्यूमर डेवलप करना शुरू कर देगा. सी हियर, फाइन. ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स. ठीक है, ये किसका काम है ना, ये टीडीएनए और टीआई प्लाज्मिड का काम है. बट जब हम इसे वेक्टर के लिए यूज करते हैं, then we remove that tumor inducing ability or the sequence involved in the tumor inducing, ठीक है, property. तो वो हमने निकाल दिया. Now it will not cause any infection in any other plant. ठीक है, ठीक. So tumor inducing plasmid or TI plasmid from Agrobacterium tumefaciens is modified into a cloning vector which is not pathogenic. अब वो कोई ट्यूमर नहीं करता, but can use the mechanisms to deliver genes of interest into plants. ठीक है, समझ में आया? So Agrobacterium tumefaciens रा plasmid use करी, that is TI plasmid, आमे transfer करी परिबा कोनो plasmids को from one to another. That is how it is done. Problem was with the tumor, but the tumor factor has been now removed. So now it is harmless or non-pathogenic. ठीक अच्छी, बुझेला रे? This way. Then retroviruses में आइए. RNA viruses basically. In animals, these can transform normal cells into cancerous cells. So they are used to deliver desirable genes into animal cells. Fine. अच्छा. उसके बाद देखो, third factor is the competent host for transformation with recombinant DNA. Now we know that ये आपकी DNA hydrophilic molecule है, cannot pass through the cell membranes. ठीक. So the bacterial cells must be made competent to take up the alien DNA or plasmid. For this, bacterial cells are treated with specific concentration of a divalent cation. Okay, that is calcium mostly. So DNA enters the bacterium through pores in the cell wall. So calcium का charge induce करके we have caused porosity of the membrane. This porosity results in the entry of the DNA. ठीक है. Such cells are called incubated with recombinant DNA. ठीक है. Then they are placed briefly at 40-45 degrees Celsius for heat shock. So because of this alternate cooling and heating, the membrane becomes permeable and the DNA, and the, what we can say, the alien DNA or the recombinant DNA can enter inside. ठीक है. This enables the bacteria to take up recombinants of DNA. ठीक है, फाइन, ओके. तो ये हो गए वेरियस होस्ट एटसेट्रा. ठीक है. सो as I said, only
आई एम वेरी हैप्पी कि चलो स्मूथी है। स्मूथी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग। ठीक है, आज ये 80% रखिबा टिल कॉम्पिटेंट होस्ट। Next class will continue from where we left and look into the various advanced methods, ठीक है, tools as well as the applications। ठीक है ना बच्चा? Okay, चलो wrap it up। Thank you, have a nice day all of you।